بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 10th مطالعہ پاکستان کی نیو بک جس میں ٹوٹل 8 باب شامل ہیں۔ آج کے لیکچر میں آپ کے ساتھ باب نمبر 4 پاکستان اور عالمی امور کے تمام مشقی سوالات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باب نمبر 4 پاکستان اور عالمی امور، اس کے تمام مشقی سوالات جس میں MCQs، شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز کے جوابات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ ہمارے چینل حماس سائنس اکیڈمی پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک کلاس میں پہنچے۔ ہمارے یوٹیوب چینل حماس سائنس اکیڈمی پر کلاس 10th مطالعہ پاکستان کی نیو بک کے باب نمبر 1، باب نمبر 2 اور باب نمبر 3 کی ایکسرسائز کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر ان ایکسرسائز کو بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو چلیے باب نمبر 4 کے تمام مشقی سوالات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ فرسٹ MCQs ہے، اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا؟ اس کا کریکٹ جواب ہے آپشن جیم 24 اکتوبر 1945۔ سیکنڈ MCQs ہے، OIC کی بنیاد 1969 میں جس شہر میں رکھی گئی وہ ہے؟ اس کا کریکٹ جواب ہے آپشن دال رباط۔ نیکسٹ تھرڈ MCQs ہے، عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا؟ کریکٹ جواب ہے آپشن بے 1949 میں۔ فورتھ MCQs ہے، پاکستان نے 30 دسمبر 1947 کو جس ادارے کی رکنیت حاصل کی وہ ہے؟ کریکٹ جواب ہے آپشن جیم اقوام متحدہ۔ پانچواں MCQs ہے، پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا؟ کریکٹ جواب ہے آپشن الف ایران نے۔ مشقی سوالات کا سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ فرسٹ شارٹ کوسچن ہے، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ فرسٹ شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 68 پر ہے جس میں ٹاپک ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ جواب کو شروع کریں گے یہاں سے، خارجہ پالیسی سے مراد کسی ملک کی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی ہے۔ اس سے مراد وہ رویہ ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے خاطر دیگر ریاستوں اور ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ یہاں تک ہے فرسٹ شارٹ کوسچن کا جواب۔ سیکنڈ شارٹ کوسچن ہے، وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں کے نام تحریر کریں۔ شارٹ کوسچن نمبر 2 کا جواب بک کے پیج نمبر 75 پر ہے جس پر ٹاپک ہے پاکستان کے وسط ایشیا ممالک کے ساتھ تعلقات۔ جواب کو شروع کریں گے یہاں سے، قازقستان۔ آپ نے صرف نام لکھنے ہیں ممالک کے۔ پہلا نام ہے قازقستان، دوسرا نام ہے کرغیزستان، تیسرا ہے تاجکستان، چوتھا نام ہے ترکمانستان اور پانچواں نام ہے ازبکستان۔ یہ 5 نام ہیں، یہ ہے سیکنڈ شارٹ کوسچن کا جواب۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے، گوادر کی بندرگاہ کی اہمیت کو 3 سطروں میں تحریر کریں۔ تھرڈ شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 67 پر ہے جس کے لاسٹ میں ٹاپک ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ۔ گرین کلر کے باکس میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے تھرڈ شارٹ کوسچن کا، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بدولت گوادر کی بندرگاہ کو ترقی دے کر فعال معاشی سرگرمیوں کا محور بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے اور اس کے آخر تک کریں گے، یہاں تک معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا۔ شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے، مسئلہ فلسطین سے کیا مراد ہے؟ فورتھ شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 78 پر ہے جس پر ٹاپک ہے پاکستان کے فلسطین کے ساتھ تعلقات۔ اس کے فرسٹ پوائنٹ کے شروع سے کریں گے، یہ جو آپ لائنز کو انڈر لائن کیا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جواب ہے۔ 1948 میں مغربی ممالک کے ایما پر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم ہوئی۔ فلسطینیوں کے لیے یہ بات تشویشناک تھی مگر اسرائیل نے اپنے علاقے پھیلانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ پر آ جائیں گے، کئی مرتبہ اسرائیل اور عربوں کے مابین باقاعدہ جنگ ہوئی۔ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک لکھیں گے صورت اختیار کر گیا۔ یہ ہے فورتھ شارٹ کوسچن کا جواب۔ پانچواں شارٹ کوسچن ہے، پاکستان کے بری اور بحری راستے کیوں اہم ہیں؟ پانچویں شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 65 پر ہے جس پر ٹاپک ہے پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے بری اور بحری راستے۔ یہاں سے جواب کو شروع کریں گے، پاکستان تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک کے آس پاس واقع ممالک سعودی عرب، عراق، کویت، بحرین۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔
नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। इसके शुरू से करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और कतर वगैरह के नज़दीक। नेक्स्ट नीचे वाली लाइन वाक़या है, नज़दीक के बाद लिखेंगे वाक़या है। और इसके आगे से शुरू करेंगे बेशुमार मगरबी ममालिक। यहाँ से शुरू करने के बाद नेक्स्ट फोर्थ लाइन पर आ जाएंगे। राहदारी की सहूलत मुहैया करता है। यहाँ तक मुकम्मल करने के बाद नीचे वाली लाइन पर आ जाएंगे। वो तमाम ममालिक जो मशरक़ी वस्ती, जैसे जैसे अंडरलाइन किया हुआ है आपने वैसे वैसे लिखना है। और इसके आखिर तक करेंगे। पाकिस्तान के मोहल्ले वकूफ़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ तक है 5वें शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्क ममालिक के नाम लिखिए। छठे शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 79 पर है, जिस पर टॉपिक है पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स में नाम लिखे हुए हैं ये इसका जवाब है। फर्स्ट नेम है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ये 8 नाम हैं। यह है 6वें शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, RCD से क्या मुराद है। 7वें शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 70 पर है, जिस पर पॉइंट है ईरान। ईरान का जो सेकंड पॉइंट है इसके स्टार्ट से करेंगे। जवाब, पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया के दरमियान इलाकाई ताउन बराए तरक्की RCD का मुआहदा इन तीनों रियासतों को एक दूसरे के करीब लाने का सबब बना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो लाइंस को अंडरलाइन किया हुआ है ये तीनों लाइंस लिखनी है और इसके आखिर तक करेंगे। ये ताउन माशी, अस्करी और सियासी नौयत का था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे पर 4 सतरें तहरीर करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बुक के पेज नंबर 85 पर है, जिस पर टॉपिक है चीन और पाकिस्तान का इक्तसादी राहदारी मंसूबा। इसके फर्स्ट पॉइंट से करेंगे। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबा बहुत बड़ा तजारती मंसूबा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करेंगे सेकंड पॉइंट की फर्स्ट लाइन के आखिर तक। मुआशियत के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वीटो से क्या मुराद है। मुख्तसर सा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है, वीटो से मुराद किसी ताकतवर मुल्क का किसी फैसले को रोकने का इख्तियार। यह है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के पाकिस्तान के लिए 3 फ़वाइद लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब है, फर्स्ट पॉइंट है मुआशी तरक्की, सेकंड पॉइंट है रोज़गार के मौके और थर्ड पॉइंट है बेहतर बुनियादी ढांचा। यह है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान वस्ती एशिया ममालिक के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब शुरू करेंगे यहाँ से। पाकिस्तान वस्ती एशिया ममालिक के लिए एक ज़मीनी रास्ता फराहम करता है जो तजारत के लिए फ़ायदेमंद है। यह है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे को किन मुश्किलात का सामना है। 4 सतरें तहरीर करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब लिखेंगे। फर्स्ट लाइन लिखेंगे सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं। नेक्स्ट सेकंड लाइन लिखेंगे इलाकाई तनाज़ात मौजूद हैं। थर्ड लाइन लिखेंगे वसाइल की मुनसफ़ाना तकसीम का मसला है। और फोर्थ लाइन लिखेंगे अवामी हामियत की ज़रूरत है। यह है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। नेक्स्ट मुश्किल सवालात में सवाल नंबर 3 है, दर्ज सवालात के तफसीली जवाब दें। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है बुक के पेज नंबर 68 पर, जिस पर टॉपिक है पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के मकासद। सबसे पहले अगर वो आपसे खारजा पॉलिसी की तारीफ पूछेगा तो आपने ये वाली लाइन लिखनी है जो आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। ये लिखने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मकासद अफजल है। ये जो अंडरलाइन की हुई हैं लाइंस ये आपने लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। इसमें से आप इम्पोर्टेंट सी लाइंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कौमी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती। सेकंड पॉइंट को मुकम्मल लिखने के बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे सकाफ़त का फ़रोग़। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 69 पर। 69 पेज नंबर पर फोर्थ पॉइंट है लास्ट, मुआशी तरक्की। इस मुकम्मल पॉइंट को लिखेंगे। इस पॉइंट से भी आप इम्पोर्टेंट सी लाइंस को लिख सकते हैं, मुकम्मल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके आखिर तक लिखेंगे इन मकासद का हसूल कामयाब खारजा पॉलिसी ही से मुमकिन है। ये 4 पॉइंट थे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के। नेक्स्ट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, मसला कश्मीर को पाक भारत ताल्लुकात में क्या अहमियत हासिल है, बहस करें।
सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब शुरू करेंगे बुक के पेज नंबर 73 से, जिस पर टॉपिक है मसला कश्मीर। इसका फर्स्ट पॉइंट है मसला कश्मीर की इब्तदा। इसके शुरू से करेंगे, पाकिस्तान और भारत दोनों मसला कश्मीर पर एक बुनियादी नज़रिए पर खड़े होने का दावा करते हैं। इस फर्स्ट पॉइंट को लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 74 पर आ जाएंगे, इसके सेकंड पॉइंट को लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत और जम्मू कश्मीर पर इसका एलामिया। इसके 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मुकम्मल लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत का इस्तिस्वाब राय से इनकार। इनके पॉइंट्स को लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इन इब्तदाई मसाइल के तय हो जाने के बाद तवक्का की जा रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने ज़ेर निगरानी कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का बंदोबस्त करेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 75। इस पर 2 पॉइंट हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की आमद, और नेक्स्ट पॉइंट है मौजूदा सूरत हाल। मौजूदा सूरत हाल के 2 पॉइंट हैं, मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना हल तलब तनाज़ा है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है मसला कश्मीर अब भी जूं का तूं है, जो आलमी अमन के लिए ख़तरा है। आलमी अमन बरकरार रखने के लिए इसका हल नागुरेज है। यहाँ तक करेंगे सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान के तुर्किया के साथ ताल्लुकात बयान करें। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 77 पर है, जिसके लास्ट पर टॉपिक है पाकिस्तान के तुर्किया के साथ ताल्लुकात। इसके टोटल 5 पॉइंट हैं। 5 के 5 पॉइंट आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान गहरे लाजवाल और बेमिसाल ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए एक ऐसा सासा है। इस पॉइंट को भी मुकम्मल लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे और थर्ड पॉइंट लिखेंगे। तुर्किया, पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर एक तंजीम इलाकाई तावन बराए तरक्की यानी RCD 1964 में कायम की। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 78 पर आ जाएंगे। इसके फोर्थ पॉइंट को लिखेंगे और इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, मसला कश्मीर के हल में मददगार होने और बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर पाकिस्तान का भरपूर साथ देने के लिहाज से शायद ही किसी और मुल्क ने पाकिस्तान के इस कदर खुलकर हमायत की हो जिस कदर तुर्किया ने की है। यहाँ तक है थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन ने पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में क्या किरदार अदा किया, बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बुक के पेज नंबर 73 पर है, जिस पर टॉपिक है चीन। इसके टोटल 5 पॉइंट हैं, इन पाँचों पॉइंट्स को लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पाक चीन दोस्ती बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मिसाली हैसियत रखती है। मुकम्मल पॉइंट्स को लिखेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, चीन ने पाकिस्तान की सनती और माशी तरक्की में बहुत फ़ाल और मौसर किरदार अदा किया। इस पॉइंट को भी मुकम्मल लिखेंगे। और इसके बाद पाँचवा पॉइंट है, पाक चीन दोस्ती की बहुत बड़ी अलामत शोहराए कराकरम है। इस पॉइंट को भी मुकम्मल लिखेंगे। इसके आखिर तक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। यहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बयान करें। पाँचवें लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 82 पर है, जिसके लास्ट पर पॉइंट है रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके भी 5 पॉइंट हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद कौमी सलामती और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। इस मुकम्मल पैराग्राफ को लिखेंगे। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ को लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ को लिखेंगे और इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ है। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने खुद को इसी से अलग करके पाकिस्तान का साथ बना दिया, जबकि रूस। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 83 पर आ जाएंगे। इस पर इसका फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है, 11 दिसंबर 2001 में अमेरिका में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। इसका मुकम्मल पॉइंट को लिखेंगे। यहाँ तक पाक अमेरिका ताल्लुकात हमेशा ही से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। यहाँ तक है 5वें लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के तमाम मशक़ी सवालात को आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।